So we are here in Central University of Jammu. Which Tila it is named as? क्या है अभिनव? Okay. अभिनव टीला नहीं. I just wanted to know because I was not knowing. Majnu ka Tila, like that we have so many Tilas, na. So I was just inquiring to know. Abhinav, who was Abhinav? We also have Abhinav Theatre. So who was Abhinav? Military man. ऐसे तो there is Abhinav Vendra also. Abhinav Vendra भी है ना shooter. But ancient India, we had the Sanskrit scholar from Kashmir. I don't know after whom you have named it, but there are many personalities after the same name, Abhinav. This particular tree, which words you find if you come early morning? Which words you are likely to find on the branches of this tree? Can you tell me? You must have seen or read in literature. Which words are you can definitely see if you are a regular coming for bird watching in the morning, 6, 7 before sunrise or at sunrise. Huh? Koyal? Yes, wonderful. You have to see the feeding habits, food habits. Some birds are very fond of eating the fig fruits. Fig fruits means अंजीर. It can be ficus religiosa, पीपल हो सकता है, बरगद हो सकता है, पिलखन पाकड़ होता है. So many. Can you tell me how many different ficus species exist in India? About 115. और उसमें बहुत सी endemic है. Endemic means they are found only in India. So one is barbet. Another group of birds. Barbet definitely, it can be coppersmith, it can be Megalema jalanica, or even their taxonomy has also been changed. जिसको Megalema genus कहते थे पहले, now it has been shifted to Xylopogon. So it need a thorough discussion. Why they have put to? Sometimes the rule of priority is also there. Sometimes some other molecular evidence may be there. It is from you, I think, youngsters, to know why it has been shifted from Megalema genus to साइलोपोगान. जो बारबेट हो गए, कॉपर स्मिथ हो गए, है ना. वन पर्टिकुलर बारबेट विच इज हिमालयन बारबेट, उसकी आवाज जो है ना, अकोस्टिक्स की बात हो रही थी, के शर्मा की बात कर रहे थे अबाउट फ्रॉग्स. परिंदों की आवाज से एशियन हिमालयन, बेसिकली हिमालयन बारबेट, उसको बोलते हैं मेगालेमा. अब साइलोपोगान हो गया. साइलोपोगान वायरेंस, ग्रेट हिमालयन बारबेट, सुना है नाम? अंग्रेजों का नाम है ग्रेट हिमालयन बारबेट, विच वी फाइंड इन आवर टूरिस्ट स्पॉट्स. पतरी टॉप चले जाओ, कुद, बटौत या इवन बनी बसोली एरिया में. उसकी खास बात क्या है? उसकी आवाज. और उसका जो लोकल नेम्स हैं, दे आर आफ्टर दैट पर्टिकुलर नोट. कौन सी नोट वो निकालते हैं? उसको है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में मेओली. उसको सुनना पड़ेगा. ट्रैंक्विलिटी तो आवाज आती है मेओली मेओली. तो उनको लगा कि ऐसे बोल रहा है तो मियोली नाम पड़ गया उसका. लेकिन इन जम्मू, डुडू, बसंतगढ़, हमारी जो माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट, वहां पे लोकल लैंग्वेज इज नॉट हिंदी, वो डोगरी है, पहाड़ी है. उनको लगा ये बोल रहा है त्रेव त्रेव, एंड दे हैव नेम्ड दिस वर्ड एज त्रेव सिंस एजेस, एट लीस्ट सेंचुरीज यू कैन से, 1000 साल से, आर्ट्स. एंड दिस नेम इज द सेम नेम बिकॉज दिस हैज रूटेड टू द लोकल डायलेक्ट और language. It can be Malayalam name that will remain unchanged. 1000 साल, 2000 साल, जो भी. तमिल नेम है मुरंगई. क्या होता है मुरंगई? तमिल का है कोई? मुरंगई क्या है? वेरी गुड. दैट्स ईटन. मोरिंगा. मोरिंगा ना, मोरिंगा इज अंग्रेजों का थोड़ा सा, बट इन तमिल लैंग्वेज मुरंगई. सो that particular Tamil word was taken, accepted by the taxonomists to name it as, put as a genus, plant genus. सब कुछ बाहर से नहीं आया. तो they also studied our local languages names which found inclusion in their taxonomy, binomial names. Who was the father of Indian botany?
जिसने पेड़ों के ऊपर काफी ज्यादा काम किया। ही वॉज अ पाइनियर, और बहुत से नाम जो हैं उसमें भी उसका नाम आता है। ही वॉज फिजिशियन, अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही केम एंड वेयर ही वर्क इन वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, भटंगर। वहां से शुरू हुआ द नेमिंग ऑफ इंडियन ट्रीज, बिकॉज मोस्टली दे वर यूरोपियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने ये देखे नहीं थे पेड़। सो वन पर्टिकुलर पेड़ विच was known to our forefathers and we have named it a different, पुत्रंजीवा, उसको बोलते हैं जियोपोता हमारे इधर जम्मू में। If you are from Jammu, तो there's a location called जियोपोता घाट near अखनूर। वहां पे हमारा जो राजा था, महाराजा गुलाब सिंह, he took oath ceremony, राज तिलक under that tree। जैसे we sometimes think भाई people is auspicious tree, तो कोई सेरेमनी करनी है, चलो पीपल के नीचे करते हैं। बट दैट किंग रूलर 1822 की बात है, 17th जून 1822 टुक राज तिलक अंडर ए ट्री विच इज नेम्ड बाय ब्रिटिशर्स लेटर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि हमने नाम उसको क्यों दिया है, पुत्र जीवक, पुत्र का या पुत्री का जीवन प्रोटेक्ट करने वाला ट्री, ये नाम उनको बताया हमारे इंडियन फोर फादर्स ने। तो देन दे वेंट होम, जब भी हमें याद करके, विद द नेम लेफ्ट बिहाइंड चाइल्ड लाइफ ट्री। दे क्वाइंड, कहां से क्वाइन किया, हमारे नॉलेज के ऊपर, हमारी विजडम। अनदर ट्री अशोक ट्री, सीता के पास जाके लंका में फर्स्ट हनुमान जिस जगह मिलते हैं, जिस बाग में मिलते हैं, वाटिका में मिलते हैं, अशोक वाटिका। क्यों कहा गया उसको अशोक वाटिका, सुना आपने? ऐसा ट्री का वो गार्डन था जिसने शोक दूर किया, जहां उसमें शोक मीन्स ग्रीफ, ग्रीफ को ले जाने की, ग्रीफ को खत्म करने की क्षमता हो, क्वालिटी हो। हमारे जो फोर फादर संस्कृत के थे, उन्होंने उसको नाम दिया अशोक। शोक मैंने ग्रीफ वाला, सारो वाला, अशोक सारोलेस ट्री। दिस नेम वॉज क्वाइंड बाय ब्रिटिशर्स, सारोलेस ट्री, बेस्ड ऑन आवर ओन विजडम, कि उसको क्या कहा हमने, अशोक ट्री। इस तरह से पेड़ों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री जुड़ी हुई है एक तो वो, बट इवन योर टेक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे आपको नासिका बेट्रैकस साइदरेंसिस की एग्जांपल दी कि उसका नाम कैसा है, उसका टिपिकल नोज स्ट्रक्चर है। तो जिसने नाम डालना था, ही इज एट लिबर्टी टू थिंक ऑफ सम कैरेक्टर, जो वो चाहता है मैं इसके ऊपर जीनस क्रिएट कर दूं। बेट्रैकस तो रखना पड़ेगा ना, जो एक एक्सेप्टेड है, विच सिग्निफाइज एनी फ्रॉग, तो उसके पीछे उसने लगा दिया नासिका। और बेट्रैकस हो गया, कहां से मिला, साइदर पहाड़ियों से मिला, साइदरेंसिस हो गया। सो आपको एक ये एक लेसन है, वो ये है कि कल को आप अगर कोई न्यू स्पीशीज, न्यू बटरफ्लाई, न्यू कायरोनामास, एनीथिंग यू फाइंड एंड यू हैव टू नेम इट। कई बार हम नेम ले लेते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, बेटर है कि कोई जियोग्राफी वहां की यूनिक है, रिवर और स्ट्रीम बड़ा जरूरी है, या आपका कोई बहुत ही लर्नड स्कॉलर है जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है, तो उसके नाम से आप उसका नाम करें। तो ये पहले अंग्रेजों के टाइम में, चूंकि इंडियंस वर नॉट वर्किंग, तो मोस्टली जो नाम है उसमें आता है रॉक्सबर्ग, आफ्टर रॉक्सबर्ग, या नथानियल बिलिच अनदर टेक्सोनोमिस्ट, तो बहुत सी स्पीशीज के नाम है, वालिचियाना या हुकरी। हुकर ने बड़ा काम किया, ऐसा नहीं है उन्होंने काम नहीं किया, पर अब आप नई स्पीशीज को बनाएंगे, उसको भी आप हुकर से ही करना चाहेंगे, वो ठीक नहीं होगा। उस वक्त कंटेम्परेरी टाइम था, दे वर पाइनियर्स। तो बर्ड वाचिंग में तीन को हम कहते, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ट्री है जिसके तीन पत्तों को कहा जाता है कि दैट इज द सीट ऑफ थ्री गॉड्स, ट्राइनिटी, तीन पत्ते और उसमें तीन ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। वो कौन सा ट्री है? वेरी गुड, ढाक। बेल नहीं है जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो शिवा का है। जो बेल है ना, बेल में है तीन नेत्र, एक तो दो ही होते हैं, सबके दो ही आंखें। थर्ड क्या होता है, जो आपको सामने नहीं दिख रहा, जैसे के शर्मा जी, उनका तीसरा चक्षु हमने आज देखा कि उनको तीसरा चक्षु है, जो हमें नहीं दिख रहा ना, वो भी उनको दिखता है ना, दूरदर्शी। तो इसलिए बोला गया शिवा के लिए। तो तीन त्रिशूल भी है
और तीसरे 3 आंखों वाला हमारे बुजुर्गों ने उसमें देखा, वो 3 पत्तियों का संयोग, तो उसको उन्होंने शिवा के साथ जोड़ दिया। लेकिन हर पेड़ को तो उस एंगल से नहीं। तो ये ढाक बहुत बढ़िया बोला। हम क्या कहते हैं, ढाक के 3 पात। क्या होते हैं ढाक के 3 पात? जैसे सुबह से के शर्मा जी ने इतना बढ़िया आपको टेक्निक्स के बारे में बोला, और हो सकता है 4 साल बाद वो दोबारा आए, तो यू आर डूइंग सम रिसर्च, और आपने उनका इनपुट लेकर के वो टेक्निक आपने लगाई ही ना हो, और आप वहीं पे कहीं पे आपका कोई गाइड है या वटेवर, या सम हाउ यू आर स्ट्रगलिंग, तो वो बोलेंगे यार इन द 2024 मैंने तो आपको बताया था। इसका मतलब जो मैंने बोला आपके करेक्टर में, नॉलेज में, विजडम में कोई फर्क नहीं आया, नो चेंज, तो वही ढाक के 3 पात, तब ये कहा जाता है। लेकिन यू नो द लोकेशन नेम्ड आफ्टर ढाक, ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और अंग्रेज जो हैं, कौन सी लड़ाई थी जो हमने हारी, इंडियंस ने, और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको गुलाम बनाया। विच वॉज दैट बैटल? पानीपत में, यस, प्लासी की लड़ाई। एंड प्लासी वर्ड हैज कम फ्रॉम पलाश, बंगाला भाषा में उसको तो पलाशी, और पलाशी अब वो अंग्रेजों ने बोलना था, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो उनको आसानी से बोला जाता है, उन्होंने प्लासी कर दिया। और जाते जाते इस पर्टिकुलर ट्री को, जिसको हमने इतना नाम दिया ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्मा की तरह, जिसको हमने ढाक नाम बोला, पलाश बोला, कई नाम हमने दिए, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? बैटल ऑफ प्लासी ट्री। क्योंकि ऐसे ही हिस्ट्री में हम भी नहीं भूल पाते हैं, चाहे हमारे लिए वो नेगेटिव सेंस में, और उनके लिए जायफुल तरीके से है कि दे रूल्ड दिस बिग नेशन फॉर सो मेनी ईयर्स। अगर वो पहली जो लड़ाई लड़ी गई, जिसको कहते हैं प्लासी की लड़ाई, वो कहाँ लड़ी गई थी? बंगाल की एक लोकेशन थी जहाँ पे उसी का जंगल था, उसी में ट्रीज बहुत थे, पलाश के ढाक के, उस जगह को बंगाली कहते थे पलाशी। सो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी ट्री। तो मैं क्या बताने की कोशिश करूँ, जैसे कह रहे सुबह एक पेड़ को देखा, इस पेड़ का नाम जो है गजानन भी है। गज किसको कहते हैं? हाथी को। क्यों है गजानन? आप पत्ते को देखिए, पत्ते में कहीं ना कहीं आपको एलिफेंट गार्ड नजर आ रहा है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, बट आई एम रेफरिंग टू माई एल्डरली विजडम। उनको दिखा, इसलिए भी इसका गज के साथ और भी रिश्ता है एलिफेंट के साथ। क्या? एलिफेंट फूड भी है, इवन योर कैमल आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो उसके, और हमने इसको वाटर बॉडीज के किनारे क्यों लगाया? सो मेनी ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस, बौलियां, कुएं, मोस्टली बाकी पेड़ नहीं हम लगाते थे, यही पीपल का पेड़ लगता था। क्यों? ये सोचा कभी? ठीक है, आज आपके पास नॉलेज बड़ा रिफाइंड है, अभी तो हम बड़े दूर मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए, न्यूक्लियोटाइड जीन सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, पर उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, डीएनए तक नहीं खोजा गया था। तो उस वक्त तो लोगों ने कैसे सिलेक्ट किया दिस ट्री टू बी प्लांटेड नियर वाटर बॉडीज? बिकॉज इट हैज द वाटर प्यूरिफिकेशन क्वालिटीज, इट कीप्स वाटर, इसकी जो पानी, कुछ चीजें ऐसी अगर पानी में पड़ जाएं गल सड़ जाती हैं, और उससे गलत किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉल स्मेल आने लगती है। दिस इज द ट्री। वो भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, अगर आपने खुद ही इसको देखना है। यू पुट दीज लीव्स इन द वाटर बॉडी, वो खराब नहीं होगा, क्वालिटी विल बी मेंटेन्ड। सो इट वाज आल्सो कंसिडर्ड दैट वे कि नियर वाटर बॉडीज अगर इसके पत्ते गिरेंगे तो दैट विल ऐड टू हेल्थ बेनिफिट्स। तो एक ट्री जो है, तभी अंग्रेज जब आए इसका नाम देना था तो उन्होंने फाइकस रिलीजियोसा ही रखा। तो 2 ही ट्रीज जो हैं ज्यादा फेमस हैं हमारे जम्मू में भी और इंडिया में, जिनका नाम रिलीजन के साथ है। स्पीशीज को कोई भी नहीं बदल पाया, चाहे वो बहुत बड़ा टैक्सोनॉमिस्ट मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी स्टडी करे। तो एक तो फाइकस रिलीजियोसा, क्योंकि इंडियंस के बिग चंक ऑफ बिलीवर्स है जो इसके आगे पीछे धागे बांधते हैं, सरकम एम्बुलेशन करेंगे, दे थिंक ओ मेरी विश हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, वटेवर वटेवर, ठीक है ना। तो वो रिलीजन के साथ ऐसा जुड़ा हुआ पेड़ अगर पूरे इंडिया में देखेंगे, सो दिस कम्स नंबर 1। तो इसको रिलीजियोसा के साथ जोड़ दिया गया। और दूसरा पेड़ कौन सा है, जिसको वरुण गॉड भी है, वरुण गॉड है, जैसे इंदिरा है, शिव है, राम, इस तरह से वरुण गॉड के साथ नाम ट्री का है वरुणा। वो भी इधर है, चूंकि हम फील्ड में जा नहीं पाए। इट ग्रोज इन सराउंडिंग दीज
ब्यूटिफुल ट्री, क्रीमिश येलो फ्लावर्स, जब पत्ते सारे झड़ जाएंगे तो इनके पेड़ों, ऐसे पेड़ विच हैव नर्चर्ड अवर कल्चर, रिलीजन, उनके ऊपर पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या निकाले हुए हैं, डाक टिकट। सो अशोक के ऊपर डाक टिकट है, अमलतास, करंगल, केशिया फेस्टुला जो हमारे इधर आगे पीछे होता है, पलाश ढाक, इन सब के ऊपर क्या निकला हुआ है, डाक टिकट, टू कनेक्ट अस टू द रूट्स, टू अवर एंशिएंट पास्ट, एंशिएंट कल्चर। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अब ट्राइनोमियल भी हो गया, और सब स्पीशीज स्पेशली एनिमल्स में तो उस लेवल पे भी है। जैसे इसका है, क्या है, पैंथेरा लियो पर्सी का ही होता था जब हमने स्टडी किया, अब लियो लियो हो गया। इसका मतलब जो पर्सिका वाला है वो थोड़ा उसकी जीन शीन कुछ अलग होगी, तो इट हैज बिकम अनदर लियो लियो है। फैलिस भी कहते थे, कई बार इसको फैलिस में रखा, फैलिस टाइग्रिस, और फैलिस, और तो डेंटिशन इज आल्सो करेक्टर, स्कल का भी करेक्टर है बोन्स के मैमल्स में। सो आपको टेक्सोनॉमी के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इन ऑल डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कि यू आर इक्वली इंटरेस्टेड, लेकिन जो भी पर्टिकुलर फील्ड है ना उसको फिर पकड़ना है और दिल के साथ जोड़ के रखना है, कोई भी चीज है। इफ यू विल एंजॉय दैट एक्टिविटी ना, जिस तरह के शर्मा जी लग रहे, वो क्यों नहीं जा रहे थे, हालांकि वो थके हुए, वो कह रहे थे कि लॉन्गर रेलवे का ट्रैवल करके आए हैं, तो ट्रेन वॉज लेट ऑल्सो, डेस्पाइट ही इज टायर्ड ऑल्सो लिटिल बिट, बट देन जब अपने सब्जेक्ट की बात करनी है, ही वॉज एंजॉयिंग टू टॉक टू यू। तो अगर आप ये थोड़ी सी जो है अपनी पर्सनैलिटी में ये क्वालिटीज नर्चर करेंगे, यू विल एंजॉय लर्निंग एंड कंट्रीब्यूट, आई थिंक इनोवेशन तो होगी ही, बट इनोवेटिव तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, और वो यू कैन लर्न फ्रॉम मदर नेचर एज वेल एज पर्सनैलिटीज लाइक के शर्मा।